हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टीएम ट्रिक्स। माय नेम इज़ टीएम बागे और आज की इस वीडियो में हम लोग वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कवर करने जा रहे हैं। दिस फोर्स इज़ क्रूशल टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम लोग यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, मोबाइल हो या म्यूज़िक सिस्टम हो या फिर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हो या फिर किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो आप अपने घरों पे यूज़ करते हो, the basic driving force behind all these gadgets is this force. So the understanding of this force is very very important to understand those things, to understand this real world. वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपको क्लास 12th में पढ़नी है, मगर क्लास 11th में भी इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बिना आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि यू हैव टू स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन केमिस्ट्री. सो यू नीड अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फोर्स. इस वीडियो में वैसे तो इस टॉपिक को एक वीडियो में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है, मगर इस वीडियो में मैं सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करूंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में या फिर केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए, या फिर जो भी आपके चैप्टर्स में आती हैं क्लास 11th में. आई विल डील विथ ओनली दोज थिंग्स विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दोज टॉपिक्स वेल. सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. What is an electromagnetic force? अगर मैं ये सवाल पूछूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, तो बहुत से लोग बहुत कुछ बोलेंगे. जैसे कि in the very first video of the 4 fundamental forces, I gave you this hint that the origin of every fundamental force lies in the exchange of certain fundamental particles. The force carrier for electromagnetic force is the photon. Exchange of photons gives rise to this fundamental force which we call as electromagnetic force. But before that you need to understand that what gives rise to this force. अगर इस दुनिया में मैटर है, मैंने पहले वीडियो में ये बात करी थी कि all forces have some material origin. अगर मैटर होगा तो फोर्स होगा. एंड द मैटर, हाउ डू मैटर इंटरैक्ट विथ ईच अदर. अगर आपके पास एक पीस ऑफ मैटर होगा तो व्हाट आर द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर. मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर. इफ इट इज़ अ मैटर इट विल डेफिनेटली ऑक्यूपाई सम स्पेस, right? And it will also have some charge. Charge is also an intrinsic property of matter, and this property gives rise to this force, electromagnetic force. अगर किसी मैटर में चार्ज होगी तो अगर दो मैटर which are charged pieces of matter, then they will interact with each other with this force, with the help of this force, electromagnetic force. So charge is the reason behind electromagnetic forces, and two charged particles exchange photons with each other, which gives rise to the electromagnetic force. Electromagnetic force को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, electrostatic force and magnetic force. Now that you have understood that charge is the reason behind electromagnetic force, you need to understand if the charges are at rest, then they will exert electrostatic forces on each other. If the charges are in motion, then they will exert magnetic forces on each other. पहले हम electrostatic force के बारे में बात करेंगे. So as it is clear from the name electrostatic, it means charges are at rest. अगर आप 2 charged body को rest में रखते हो तो then also they can exert forces on each other even without coming in contact with each other. This is called electrostatic forces. So हमने बहुत पहले ही ये नोटिस कर लिया था कि अगर आप किसी 2 मटेरियल को रब करते हो तो they get some kind of magical properties and they start attracting other objects. Just like this balloon over here, you can see that this wall is positively charged and this balloon is negatively charged. If you bring them closer, then they will exert forces on each other and the balloon will stick to the wall. अगर 2 बैलून को आप एक साथ रखोगे तो ये बैलून एक दूसरे को रिपेल करेंगे. सो नाउ वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग दैट अगर देयर इज़ नाउ वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग दैट अगर किसी मटेरियल बॉडी में चार्ज होगी तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी दे कैन एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस, राइट. सो अगर मैं एक बॉडी में बोलूँ कि Q1 चार्ज है, दूसरे बॉडी में बोलूँ Q2 चार्ज है, देन दे कैन एक्सर्ट रिपल्सिव फोर्स और दे कैन एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्स. दिस गिव्स अस अ
this gives us a clue that the charges come in two varieties, positive and negative. Now that we have an understanding that the charges comes in two varieties, they can exert forces on each other. Like charges repel each other, unlike charges attract each other. So exactly how much force they apply on each other, that was given by Coulomb's law. Okay, so Coulomb's law tells us that force is directly proportional to the product of the charges, and the force is inversely proportional to the square of the distance between them. And because of that thing, force comes out to be force is equal to k q1 q2 by r square, and here k is the proportionality constant, which is called Coulomb's constant. Fine. Next thing that you need to understand is the existence of electric field. So अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि how can two charged particle exert forces on each other without coming in physical contact with each other, so modern physics में हमें इसका एक ही आंसर मिलता है कि electric charges set up a field around themselves, and if any other charged particle comes in that field, then they can experience the force due to that charged particle. Electric field is a vector quantity. Electric field is defined in this way. Here you can see this thing. Electric field is equal to force per unit charge. That is why the unit of this is Newton per Coulomb. So यहाँ पर अगर आपको एक फील्ड लाइन की जानकारी है, फील्ड लाइन क्या होती है? फील्ड लाइन्स are the pictorial representation of the field around the charged bodies. In this case, there is a dipole here, the positive charge is there, the negative charge is over there. This dipole is setting up a field around itself, and if we want to calculate the field at a particular point, suppose at this point, if I put a charge over here, so how to find out the force over here? Just take the tangent at this point. This is the tangent, and this tangent, the direction of this tangent will give you the direction of the force. Direction of the force. So force will be acting in this direction, and what will be the magnitude of the force? Force will be equal to, अगर यहाँ पर electric field E है, तो by definition you can see that what would be the force? Force would be equal to Q times E. Force is a vector quantity, so it will be in this direction. Okay, so at different points you can see that the force is acting in different direction because the field is different. That is the characteristic of the field itself. Okay, so field lines, how to draw the field lines? Field lines always originate from the positive charge and end at the negative charge. If we have only positive charge, then the field lines will originate from the positive charge and end at infinity. अगर हमारे पास सिर्फ negative charge है तो they will come from infinity and end at the negative charge, something like this. Okay, so now you have a basic understanding of electric field. So you just remember this thing कि अगर किसी particular point पे अगर एक charged body रखी जाती है Q, तो उसके ऊपर एक force act करेगी, and that force will be equal to Q times E. So E की definition, E is the electric field over here, और E की definition, the definition of E is given over here. Fine. Okay, now let's move on. यहाँ पे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको समझनी पड़ेगी कि परमिटिविटी क्या होती है. परमिटिविटी is the measure of interaction between electrostatic force and medium. Permittivity of free space is given by this value, very dangerous value is there, 8.85 into 10 to the power minus 12 farad per meter. So this is the permittivity of free space. एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम से किस तरीके से इंटरेक्ट करती है, व्हाट चेंजेस अकर इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन डिफरेंट मीडिया, दैट द मेजर ऑफ दैट थिंग इज कॉल्ड परमिटिविटी. डिफरेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सपोज आप वैक्यूम में दो चार्ज को, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट वैक्यूम, अगर दो चार्ज पार्टिकल को आप वैक्यूम में रखते हो, इफ़ दे आर आर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, देन दे विल एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर. अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन को किसी दूसरे सिस्टम में रख देते हो, दूसरे मीडियम में रख देते हो, तो the force won't be the same. Force would be different. There will be some changes in the force, and how much change occurs over there, that is the measure of permittivity.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो, मान लो कि चलो सपोज करते हैं कि Q1 एंड Q2 एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. लेट अस से दैट दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 81 न्यूटन एंड F12 विल ऑल्सो बी 81 न्यूटन बिकॉज दे ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट. Okay, so electrostatic forces obey the Newton's third law of motion. So in this case, even if they are attracting with each other, let us say that they are applying 81 Newton of force and F21 is also 81 Newton of force. अब this same configuration, if this same configuration is put into water, अगर हम इस सेम कॉन्फ़िगरेशन को वाटर के अंदर डाल दें तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन. सो क्या अब भी फोर्स 81 न्यूटन फोर्स एक्ट करेगी? सो क्या फोर्स अब भी 81 न्यूटन ही रहेगी या फिर कम हो जाएगी या फिर बढ़ जाएगी? सो इसी को, क्योंकि यू सी दैट इसकी परमिटिविटी अलग है. वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है, जिसे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर हम ये बोलते हैं. ठीक है, इसकी परमिटिविटी कुछ और होगी. मेजर ऑफ दिस परमिटिविटी विल बी डिफरेंट. Okay, so we try to understand this thing, so you'll get an idea about this thing. Suppose 81 न्यूटन ऑफ फोर्सेस. सो अगर हमने इसे वैक्यूम पे रखा था तो 81 न्यूटन ऑफ फोर्सेस वर एक्टिंग बिटवीन देम. अगर हमने इसे किसी दूसरे मीडियम में रख दिया, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस वी आर पुटिंग दिस इनसाइड वाटर, देन इट वॉज ऑब्जर्व्ड द फोर्स इज ओनली 1 न्यूटन. नाउ it has decreased drastically. Now only 1 Newton of forces are acting between them. So force has been decreased drastically because of a property called dielectric constant, which is 81 for water. In this case, just see this thing. In this case, the K has this value. If we write this formula properly, 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square. Here K is equal to 1/4 pi epsilon naught. Okay, here epsilon naught is the permittivity of free space. That is what we are using in the formula. So अगर आप free space में अप्लाई करते हो तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे. अगर आप एक दूसरे मीडियम में अप्लाई करते हो तब आपकी फॉर्मूला जरा सी चेंज हो जाएगी. 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे आप इसकी परमिटिविटी के बारे में बात करोगे, ना कि वैक्यूम की परमिटिविटी के बारे में बात करोगे. मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग दिस थिंग्स बिकॉज वी आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड दैट वी आर डीलिंग विद द वैक्यूम सिस्टम. बट डोंट गेट confused. If you're talking about the electromagnetic force, if you're talking about electrostatic force in a different medium, then you have to take the permittivity into account, and this force will be equal to Q1 Q2 by R square. Other things will remain the same, only one term is changing, which is the permittivity of a space. Here this is the permittivity of water. Permittivity, okay, permittivity of water. ओके, सो व्हाट इज़ द परमिटिविटी ऑफ वाटर इन दिस केस? यहाँ पे परमिटिविटी के बारे में आप ये समझ लो कि ये एप्सिलॉन क्या होती है. एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. ओके, सो व्हाट आई मीन बाय दिस थिंग, यहाँ पर फोर्स, जब हम लोग वैक्यूम से वाटर में आ रहे हैं तो फोर्स 81 टाइम्स कम हो जा रही है. सो इस 81 टाइम्स को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. Dielectric constant, or this is also sometimes called relative permittivity. Relative permittivity. फाइन, वाटर के केस में रिलेटिव परमिटिविटी 81 टाइम्स आती है तो फोर्स जो वैक्यूम पे लग रही थी वो 81 टाइम्स कम हो जाएगी. इसी तरह से डिफरेंट मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी रिड्यूस्ड बाय डिफरेंट अमाउंट, एंड दैट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट मीडियम इटसेल्फ. अगर आप वाटर पे रखते हो तो फोर्स विल बी रिड्यूस्ड बाय सम डिफरेंट अमाउंट. अगर आप
ऑयल पे रखते हो तो फोर्स विल बी रिड्यूस्ड बाय सम डिफरेंट अमाउंट एंड दैट इज गिवन बाय दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके, सो परमिटिविटी फाइंड करनी है तो परमिटिविटी का फॉर्मूला ये होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. सो अगर आप फाइंड करना चाहते हो इस केस में व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ वाटर, देन इन दिस केस जस्ट यूज दिस थिंग 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 10 टू द इंटू 81 फेराड पर मीटर. Okay, dielectric constant is dimensionless but permittivity has a dimension farad per meter. ओके, आई होप कि आपको परमिटिविटी की कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट अस टॉक अ लिटिल अबाउट मैग्नेटिक फोर्सेस. मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? एन अट्रैक्टिव पुल और रिपल्सिव पुश बिटवीन टू मैग्नेट्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. सो यहाँ पे हम लोग पहले तो ये इमेजिन करेंगे कि मैग्नेट जस्ट मैग्नेट्स होते हैं और मैग्नेट्स में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं. एक मैग्नेट में दो तरह की पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एंड हियर ऑल्सो दे आर जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिक चार्जेस. नॉर्थ पोल को आप पॉजिटिव समझ सकते हो और साउथ पोल को आप नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज समझ सकते हो. तो मैग्नेटिक चार्ज कम्स इन टू वैराइटीज, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड द सेम प्रिंसिपल्स work over here as well. For example, like poles repel, unlike poles attract. Okay, a magnet is any material that can generate magnetic forces. Basic kinds of magnets that we will be talking about are these things: bar magnets and horseshoe magnets. Basically two kinds of magnets, but the most basic magnet that we will be talking about, we will be concerned in this chapter, is the bar magnet. In all the chapters we will just be talking about the bar magnet only because that will help you understand a lot of concepts. Okay, चलो प्रीवियस स्लाइड में आते हैं. सबसे पहले अब आपने समझ लिया कि दो मैग्नेट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. अब आपको ये समझना है कि मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर फोर्स कैसे लगाते हैं. तो जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, two charges apply forces on each other because of the electric field, and two magnets can apply forces on each other without coming in physical contact with each other because of the magnetic field. Magnets also set up a magnetic field around itself, and if another magnet comes into this magnetic field, then they can exert forces on each other, right? So the space around a magnet over which a magnetic force exists is called magnetic field. राइट, एंड यहाँ पे आप देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वी ड्रॉ इट इन द सेम मैनर. ऑल द फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल. यहाँ पे देखो आप नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल पे ख़त्म हो रही हैं. यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, नॉर्थ पोल से निकल रही हैं फील्ड लाइंस और उसके बाद साउथ पोल में चली जा रही हैं. अब आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेट को देखो कि वो किस तरह के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करती हैं. मैग्नेटिक फोर्सेस कैन नॉट एक्ट विदाउट मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फोर्सेस कैन एक्ट ओनली इन द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड्स एग्जिस्ट, एंड मैग्नेटिक फोर्सेस विल एक्ट ओनली ऑन द मैग्नेट्स. इट विल नॉट एक्ट ऑन नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स. राइट, मैग्नेट से आप प्लास्टिक को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, मैग्नेट से आप आयरन को अट्रैक्ट कर सकते हो, मैग्नेट से आप किसी वुडन ब्लॉक को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट मैग्नेट से आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल्स को ही अट्रैक्ट कर सकते हो या फिर किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकते हो. सो इतनी बात आपको समझ में आ गई. मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. लाइक पोल्स रिपेल each other, unlike poles attract each other. Magnetic field lines gives you the pictorial representation of the field around a magnet. अब चलो समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनिफाई किया गया था. तो पहला एक्सपेरिमेंट जिसने हमें ये क्लू दिया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर द टू एस्पेक्ट ऑफ द सेम थिंग विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म was the Oersted experiment. In the Oersted experiment we take a current carrying conductor और उसके पास एक मैग्नेटिक कंपास को रख दिया जाता है. जब भी इस करंट कैरिंग कंडक्टर से, दिस इज योर करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी इस करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट पास करती है, देन यू विल सी अ डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास. अगर आप करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हो तो डिफ्लेक्शन हैपन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. The direction of the force on the magnetic compass is reversed if you change the direction of the current. Now, what is current? Current is nothing but the flow of charges, dq by dt. The rate of flow of charge is called current, right? So, inside
द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हाट इज हैपनिंग, अगर डायरेक्शन करंट का यहाँ है इस डायरेक्शन में, सो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, समथिंग लाइक दिस, एंड बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स some magnetic field is coming into existence. It means that's what I wanted to tell you, right? Moving charges gives rise to magnetic fields. यहाँ पे क्या हो रहा, मैग्नेटिक कंपस इज अ मैग्नेट, और मैग्नेट पे सिर्फ एक मैग्नेटिक फोर्स लगा सकती है, पर यहाँ पर तो कोई भी मैग्नेट नज़र नहीं आ रही है, but if you look inside the current carrying conductor, then you will see that some electrons are moving inside the conductor, and those electrons, those moving charges, create a magnetic field around itself. Actually, the moving charges behave like a magnet, so they will create a magnetic field around itself, and that magnetic field exerts a force on the magnetic compass, and that gives us a clue that electric charges behave like a magnet when they are moving. Okay, so this tells us that electricity and magnetism are connected with each other. चलो पहले आप इस बात को समझ लो अच्छे से कि a moving charge particle behaves like a magnet and it creates a magnetic field around itself. जब भी कोई चार्ज पार्टिकल स्पेस में मूव करेगी तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, क्योंकि वो मूविंग चार्ज पार्टिकल विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, इट विल बिकम अ मैग्नेट. एंड अगर वो चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा, जिसे हम लोग नॉर्मली लॉरेंज फोर्स के नाम से जिसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, या फिर उसे लॉरेंज फोर्स कहा जाता है. लॉरेंज फोर्स कहा जाता है. Actually, there is one more term in the Lorentz force, but this is also called Lorentz force, and this force is given by this formula. This is QV cross B. This is the cross product of vector. क्रॉस प्रोडक्ट अभी तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा क्लास 11th में, जिन्होंने पढ़ लिया है उसे मेरी बात समझ में आएगी कि क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट. सो QV क्रॉस B, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, सपोज यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन टू यू इन दिस डायरेक्शन, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल, अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को ले लूँ, अगर ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रही है, लेट अस से दैट दिस इज प्लस क्यू, सो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, राइट. और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. तो अब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना, तो फोर्स इसमें QB cross B. So this will be directed something. Force will be directed into the screen, something like this. Force will be directed in this direction, and this force will be equal to QB cross B. This force will be perpendicular to both the velocity and the magnetic field. Okay, so magnetic force acts like this. The direction of this magnetic force can be found out with the help of the right hand rule. आप देखो यहाँ पे QV क्रॉस B बोला जा रहा, तो पहले आप ये नोटिस कर लो कि V किस डायरेक्शन में है, V अगर इस डायरेक्शन में है, और B किस डायरेक्शन में, B इस डायरेक्शन में है. अब आप अपने हैंड्स को कर्ल करो V से B की तरफ, आपका थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा दैट इज़ गोना बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, एंड your thumb is pointing in this direction, so that is going to be the direction of the force. Okay, so in this way we can find out the direction of magnetic force on any charge if a charged particle is moving in a magnetic field. Okay, चलो अब हम एक जनरल लॉरेंज फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिफाइंड समथिंग लाइक दिस, E इज़ इक्वल टू F बाई क्यू. ओके, जनरल मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम एक ऐसे स्पेस की बात करें जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल वहाँ पे मूव करती है, तो उस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्ट करेगी और मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट करेगी. दिस इज़ द जनरल फोर्स on a charged particle in space. अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स इज़ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. नाउ दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है वो डोमेन थ्योरी समझनी है. इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स. कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द मैग्नेटिज्म. आई टोल्ड यू दिस थिंग्स. इन एन एटम आप देखो
बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हमने बात करी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करती है देन इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। सो एक एटम के अंदर देर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स which are orbiting around the atom, so they are moving charged particle, so all the electrons are behaving like a magnet, right? So अगर हम सारे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दें तो क्या होगा, हर एक एटम एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा और जिनका अपना अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में हर एक एटम, दीज एरोज आर रिप्रेजेंटिंग दी एटम्स, और हर एक एटम का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसकी डायरेक्शन यहाँ पे दी गई है कि दे आर ओरिएंटेड रैंडमली, बट बिकॉज दीज एटम्स आर ओरिएंटेड रैंडमली द नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी ज़ीरो। द नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी ज़ीरो इन दिस केस। द नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी ज़ीरो इन दिस केस। मगर मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, इसमें डोमेन्स पाए जाते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय डोमेन्स? डोमेन्स में क्या होते हैं, यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में आप देखो कि हर एटम अलग अलग है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी मैग्नेटिज्म है, सबकी अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, लेकिन वो अलग अलग हैं। यहाँ पर देखो कि अगर हम एक रीजन को कंसिडर करें, एक पीस ऑफ मैटर ले लो, उसके एक रीजन को कंसिडर करो, यहाँ पे सो मेनी एटम्स विल बी देयर, राइट, मिलियंस ऑफ एटम्स विल बी देयर, और हर एटम का मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में अलाइन रहता है। सो इस तरह के रीजन को हम लोग डोमेन बोलते हैं। यहाँ पे सारे एटम्स का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अलाइंड है, ओके, यहाँ पे वैसे ही। सो ऐसे रीजन्स जहाँ के एटम्स के मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो, उस रीजन को हम लोग डोमेन बोलते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स में इस तरह के डोमेन्स पाए जाते हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो रैंडमली ओरिएंटेड। सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर भी ऑल्सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो। लेकिन अगर आप किसी मैग्नेट को यहाँ पर सामने लाते हो मैग्नेटिक मटेरियल के सामने, तो वो इस मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आयरन की बात करूं मैं, तो आयरन में इस तरह के डोमेन स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। सो अगर किसी मैग्नेट को लाता हूं तो आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि इन दैट केस देयर डोमेन्स विल गेट अलाइंड। यहाँ पे आप देखो ये अलाइन हो जाती हैं समथिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और मैंने पहले ही बताया कि हेड को आप नॉर्थ पोल समझना एंड टेल को आप साउथ पोल समझना। तो एक साइड इसका नॉर्थ पोल बन जाता है, एक साउथ पोल बन जाता है। इट मीन्स नाउ दैट मैग्नेटिक मटेरियल behaves like a magnet, it becomes a magnet, and that is why it can experience the presence of other magnets and they can attract or repel each other. Okay, so this is the key idea to understand the atomic structure or the magnetic properties of matter, and there are so many chemical reactions which are based on these things. You need to understand these things. Fine. अब मैं आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डोमेन क्या होती हैं। तो अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल को आप देखते हो तो उसमें डोमेन्स कुछ रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, समथिंग लाइक दिस, रैंडमली ओरिएंटेड, एंड बिकॉज ऑफ दिस रैंडम ओरिएंटेशन देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड एज सच। आयरन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करती, मगर जब आयरन को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हो तो आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। बट क्या एक आयरन पीस दूसरे आयरन पीस को अट्रैक्ट कर सकती है? आयरन में कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जब उसे आप मैग्नेट के सामने ले आते हो तो आयरन मैग्नेट बन जाती है। कैसे? ये देखो कि अगर यहाँ पर एक मैग्नेट रख दो आप, बार मैग्नेट नॉर्थ पोल, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होगी। अगर आप इस मैटर को यहाँ पर रख देते हो यहाँ पर, तो इसके जो रैंडमली ओरिएंटेड डोमेन्स हैं ये एक डायरेक्शन में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाती हैं। अब आप देखो कि अंदर तो ये सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, अंदर ये कैंसिल हो जाती हैं। बट एट द टॉप एंड एट द बॉटम इसकी टॉप नॉर्थ पोल बन जाती है और इसकी बॉटम साउथ पोल बन जाती है, तो ये मैग्नेट बन गई। अब नॉर्थ और साउथ, ये तो साउथ बन गई, ये तो नॉर्थ बन गई। अब नॉर्थ और साउथ में क्या होगा? अट्रैक्शन ही होगा। सो ऑब्वियसली आयरन पीस विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट। अगर आप इसे इस डायरेक्शन में रखते हो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसी अलग डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे देखो डोमेन किसी दूसरे ओरिएंटेशन में अलाइन हो जाती हैं। तो यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट होता है और यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट होता है। देखा आपने? सो इस तरीके से
सारे मैटर, सारे मटेरियल बिहेव करते हैं. इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एटम्स बिहेव डिफरेंटली. If it is a magnetic material, then the domains of this material will get aligned in the direction of the external magnetic field. So this is the key idea behind understanding any kind of atomic structure, the magnetic properties of matter, and so many other things. So there are so many things that we need to cover in this chapter, but we cannot do it in a single video. But this much of basic ideas you must keep in mind while you are studying any electrical or magnetic phenomena. With this thought, I'll leave you here. Till then, may force be with you. Thank you.